speakers like Dr. Amir Ejaz and Dr. Sara and Shabnam and Dr. Hafsa, so and Dr. Fatma Khanani. So we change a little bit change as per the hierarchy of the theme of this course. So Dr. Hora will be with us today for the discussion of international external quality assurance schemes. And Dr. Hora, please start your lecture, and I welcome to you in this, and I appreciate you give your precious time and your experience with us, and please start. Thank you, Arshi, for the introduction. Assalamu alaikum, everyone. इसको share कैसे करूं? Uh, the topic for today, which I will be speaking on, is international external quality assurance. Okay. What the objectives of my talk is: what is external quality assurance? Firstly, what are the different external quality assurance bodies? How will you go about performing external proficiency testing? And how will you analyze your results? I hope my voice is clear, everyone. Yes, madam, your voice is clear. Okay. What is quality assurance? Quality assurance is basically part of quality management focused on providing confidence that quality requirements will be met. Now you are giving confidence that your quality is good. You don't know if your quality is good. So you have to give confidence to yourself. First of all, confidence is provided by quality assurance is twofold. Firstly, to the management, first yourself, that you know that आपको देखने के लिए कि ये आप क्वालिटी आपको भी सेटिस्फाई करना है कि आपकी क्वालिटी सही है या नहीं है, ठीक है। सेकेंडली मैनेजमेंट, आपके हॉस्पिटल के मैनेजमेंट को आपको दिखाना है कि आपकी क्वालिटी सही है, तो आप उनको अश्योर करोगे, आप उनको कॉन्फिडेंस दोगे कि हमारी क्वालिटी सही है, ठीक है। अच्छा, फिर थर्डली एक्सटर्नली टू कस्टमर्स, अगर हम लैब में वर्क कर रहे हैं तो एक्सटर्नल हमारे कस्टमर्स कौन है? हमारे पेशेंट्स हैं। तो पेशेंट्स को भी हम एक अश्योरेंस दे रहे हैं, एक प्रूफ दे रहे हैं कि हमारी क्वालिटी अच्छी है, जो भी आपके टेस्ट रिजल्ट्स आएंगे वो प्रॉपर और सही आएंगे, ठीक है। फिर गवर्नमेंट एजेंसीज को भी आप कहते हैं कि गवर्नमेंट लाइसेंस देता है, तो गवर्नमेंट एजेंसीज को, जैसे सिंध हेल्थ कमीशन आजकल हर जगह पे दौरा कर रही है, तो गवर्नमेंट एजेंसीज को भी ये क्वालिटी अश्योरेंस देना होता है कि हमारे टेस्ट हमारे सब सही है। रेगुलेटर्स हैं, सर्टिफायर्स हैं, थर्ड पार्टीज हैं। तो इसमें ये भी आ गया कि आप एक्रेडिशन की तरफ अगर जा रहे हैं तो आप एक्रेडिशन के लिए भी आपको ये क्वालिटी अश्योरेंस की जरूरत है कि एक्रेडिशन करने से पहले वो लोग आपसे क्वालिटी अश्योरेंस मांगेंगे कि आपकी क्वालिटी सही है या नहीं, ठीक है। External quality assessment are procedures and programs that provide information about systematic errors and maintenance of long-term accuracy of analytical methods. इसके अंदर क्या है कि आपने we have done systematic errors in detail in lot of lectures, और आमिर ने भी बताया था, कल फातिमा कनानी also talked about systematic errors. So this external quality assessment, there are programs and there are procedures to find out if we have got systematic errors and for the maintenance of long-term accuracy of analytical methods. आपके मेथड अगर सही है तो आपको long term accuracy, मतलब पूरा साल अगर आप accurate है या नहीं है ये आपको पता चलता है, तो ये आपको इसको डिटरमिन करने के लिए you do external quality assessment. Proficiency testing, similar to external quality assessment, they are used synonymously. इसमें क्या होता है? A process in which simulated patient specimens made from a common pool are analyzed by laboratories to determine the quality of laboratories performance. एक आप patient pool तैयार होता है, ठीक है, सीरम का पूल तैयार होता है, बहुत सारे पेशेंट को मिला के एक पूल आप बनाते हो, और वो आप पूल ऑफ सीरम जो है वो आप हर लैब में भेजते हो, ठीक है।
और वहां से वो डिटरमिन, और उससे आप डिटरमिन करते हो क्वालिटी, लैब की परफॉर्मेंस की क्वालिटी। दिस इज कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट। ठीक है, आपको कोई चीज समझ में नहीं आए तो फिर चैट के अंदर हम लोग वी विल आंसर क्वेश्चंस ऑन द चैट। पूछ लेना, आप अभी से लिख दो तो मैं आपको कुछ बताऊँ। अच्छा, सक्सेसफुल पार्टिसिपेशन फॉर लैब एक्रेडिटेशन इज नीडेड बाय। अब लैब एक्रेडिटेशन की तरफ आप जाओगे तो इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ जो लैब एक्रेडिटेशन करवाते हैं, जैसे सेंटर फॉर मेडिकेयर एंड मेडिकेड सर्विसेज CMS की एक्रेडिटेशन होती है, JCIA का आपने नाम सुना होगा, द जॉइंट कमीशन ऑन एक्रेडिटेशन ऑफ हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस, उसके अंदर भी आपको प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग चाहिए। अच्छा, कैप वाले जो हैं, कॉलेज ऑफ अमेरिकन पैथोलॉजिस्ट, वो भी एक्रेडिटेशन करते हैं, वो उनको भी एक्रेडिटेशन अगर आपको करनी है तो आपको प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग जरूर करनी है। ये आप अगर, ये एक क्राइटेरिया है, एक वो है कि अगर आपने एक्सटर्नल प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग नहीं की, एक्सटर्नल मतलब आप अपने लैब का इंटरनल होता है जो आप डेली करते हो, जैसे आप QC करोगे, आप LJ चार्ट बनाओगे, वेस्टगार्ड रूल्स लगाओगे, ये सब चीजें करोगे, वो आप एक उसमें कर रहे हो, वो आप इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस कर रहे हो। एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब आपके लैब से बाहर, आपके लैब से बाहर आप जो भी करोगे वो एक्सटर्नल हो जाएगा। तो आप अपना तो चले LJ चार्ट भी ऊपर नीचे कर लिया, आपने कर लिया, दिखा दिया कि हमारा सही है, लेकिन जब एक्सटर्नल करने जाओगे तो आपकी सही चीज सही होगी, तभी आप एक्सटर्नल प्रोफिशिएंसी में पास हो सकते हो, वरना नहीं होगे। तो इसलिए ये एक और अच्छा पैरामीटर हो जाता है चेक करने के लिए कि आपकी लैब की वर्किंग किस तरह की है, सही है या नहीं। To pass PT, proficiency testing, labs must meet desirable standards laid down by the Clinical Laboratory Improvement Act. ये क्लाया जो है, क्लिनिकल लेबोरेटरी इंप्रूवमेंट एक्ट, उसने कहा है कि आप ये एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, इतना स्टैंडर्ड होना चाहिए आपको आपकी लैब का, तभी आप प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग पास कर सकते हो। PT schemes have to respect current analytical performance and so have a wide acceptability limits. इससे क्या, इसका क्या मतलब है कि हर लैब जो है वो अलग तरीके से, अलग मेथड से कर रही है, अलग इंस्ट्रूमेंट पे काम कर रही है, अलग चीजें कर रही है, तो ये सारी स्कीम्स जो है ना वो सबको लेकर चलती है। कि अगर मैं रॉश की मशीन पे कर रही हूँ, फलाना एबट की मशीन पे कर रहा है, फलाना रेडॉक्स की मशीन पे कर रहा है, तो आपके सारे मशीन्स को आप लेके चलोगे। ऐसा नहीं है कि मैं अगर एबट यूज कर रही हूँ, एबट का है, दूसरी मशीन यूज कर रही हूँ, दूसरी मैं रैंडॉक्स से नहीं यूज कर सकती, नहीं, तो सारी मशीन जो भी आप मशीन करो उसको सबको लेके चलती है। ठीक है, labs may lose their license if they do not pass PT. अगर प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग एग्जाम क्लियर टेस्ट अगर क्लियर नहीं करता लैब, तो लैब जैसे गवर्नमेंट की तरफ से, उसकी तरफ से हमको लाइसेंस मिलता है, तो अगर लैब ये प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग पास नहीं करेगा तो ये लाइसेंस खत्म भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा, अब प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग का एक लिमिटेशन भी है, एक उसके अंदर ड्रॉबैक भी है। क्या है? is the tendency to maintain the quality at a certain level and are unable to stimulate improvement of quality beyond this level. इसका मतलब है कि आपने अगर इसका, इससे क्वालिटी आप एक लेवल पे तो रख सकते, अच्छी चीजें तो बहुत सारी है, एक थोड़ी सी बैड उसका ये भी है कि आप अगर क्वालिटी को एक सर्टेन लेवल पे तो आ गए, लेकिन आप उससे ज्यादा, जैसे हमने कल बात की सिग्मा मैट्रिक्स की, वो आप क्वालिटी को एक्सेलेंस की तरफ ले जा रहे हो, ठीक है ना, आप उसके अंदर पता चलता है कि आप क्वालिटी एक्सेलेंस की तरफ जा रही है। यहाँ क्या है, एक क्वालिटी एक बेसिक है, इतनी बेसिक क्वालिटी आपकी होनी चाहिए, वो है, उसका मतलब सही है, तो आपको फर्दर इम्प्रूवमेंट इसमें नहीं है, ये एक इसका ड्रॉबैक है। अच्छा, external quality assessment program. This is a term added by the International Federation of Clinical Chemistry. IFCC एक body है, एक organization है, International Federation of Clinical Chemistry, जो इन सब chemistry की लैब को साथ लेके चलती है, और उन्होंने ये टर्म डाल दी है External Quality Assurance Program. इसमें क्या होता है? It is an inter-lab comparison designed and operated to assure one or more of the following aspects. अब ये comparison है between labs, एक वो नहीं है कि एक पक्का है, आपको आपने उसे किया नहीं किया, नहीं, ये सारे labs को आपस में compare करता है। ठीक है, so क्या क्या देखता है इसमें? पार्टिसिपेंट परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, लैब की परफॉर्मेंस को दिखाता है कि किस तरह परफॉर्म किया है लैब ने, उसके टेस्ट किस तरह रन किए हैं, सारी चीजें।
इंटरप्रिटेशन दिखाता है, इंक्लूडिंग द एडवाइस गिवन टू क्लिनिशियंस ऑन लैब रिक्वेस्ट्स एंड डायग्नोसिस। आपने इंटरप्रेट किया, जैसे ग्लूकोज आपने इंटरप्रेट किया 107 है किसी का, तो आपने उसको इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस इंटरप्रेट किया, उसके आपने, तो आपकी इंटरप्रिटेशन, आपके डॉक्टर को, क्लिनिशियन को एडवाइस दी, आपने डायग्नोसिस बताया, वो सब इंटरप्रिटेशन में आता है। फिर मेथड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, मेथड वैलिडेशन और ये सब हमने जो आपने पिछला किया हुआ है, ये सब इसमें आ जाता है। पोस्ट मार्केटिंग विजिलेंस ऑफ इन विट्रो डायग्नोस्टिक डिवाइसेस एंड कंटिन्यूअस एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड हेल्थ। कंटिन्यूअस एजुकेशन, एजुकेशन तो कहते हैं ना, कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। आप कभी ये नहीं कर सकते मैंने सब पढ़ लिया, नहीं, हम जितना भी हम सीनियर हो जाए हम लर्न करते हैं और हम अपने आप को कंटिन्यूसली एजुकेट करते हैं। तो सभी को अपने आप को कंटिन्यूसली एजुकेट, ट्रेन करना चाहिए। ओके, नाउ कैप के बारे में मैं बात करूंगी। बेसिकली इसकी आपको पूरी डिटेल से समझाऊंगी कि किस तरह आप कैप स्टार्ट कर सकते हो। तो इसके अंदर यही मैंने बताया कि पहले तो नेशन वाइड होता है। एक्सटर्नल क्वालिटी, इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस क्या हुआ, हमारा अपना विद इन आवर लैब, हमने इंटरनली हमारी लैब की क्वालिटी की, हमने एलजे चार्ट बनाए, हमने मेथड वैलिडेशन की, हमने एलजे चार्ट पे वेस्टगार्ड रूल्स लगाए, वो सब हमने इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस होता है। ठीक है, एक्सटर्नल का मतलब अपनी लैब से बाहर, अपनी लैब से बाहर आप कहीं भी जा सकते हो, किसी भी तरह से आप इसको कर सकते हो। उसके लिए सर्टेन बॉडीज हैं, सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ये एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस करवाती है। ठीक है, तो एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर एक तो नेशनल भी आ जाता है। नेशनल के अंदर नी कैप है, NEQAP, नेशनल एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम। ये AFIP रावलपिंडी से रन होता है। वो अगर आप नहीं है, छोटी लैब है, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, इनके पैसे लगते हैं ज़्यादा। अगर आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है तो आप अपनी नेशनल बॉडी से भी आप अपने आप को एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस करवा सकते हैं। ठीक है, हमारी पाकिस्तान में। अगर आप ज्यादा करना चाहें, आपकी बड़ी लैब है, आपके पास रिसोर्सेज हैं, तो आप इंटरनेशनल क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम पे कर सकते हैं। मेरा टॉपिक चूंकि इंटरनेशनल है तो मैंने नेशनल को टच नहीं किया। नेशनल के बारे में इंशाल्लाह आपको आगे कोई बताएगा। ठीक है, इंटरनेशनल क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम्स में दो मेन बॉडीज हैं जो क्वालिटी एश्योरेंस करवाती हैं इंटरनेशनली। इसके अंदर एक आता है कॉलेज ऑफ अमेरिकन पैथोलॉजिस्ट, ये अमेरिकन बेस्ड बॉडी है जो एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम करवाती है। और दूसरी है रिकास, ये रैंडॉक्स वालों की तरफ से है, ये ब्रिटिश कंपनी है, यूके की कंपनी है, जो बॉडी है जो एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम करवाती है। ये मेन दो कंपनीज है, फिर दूसरे छोटे छोटे बहुत होते होंगे आई एम श्योर, लेकिन ये मेन दो, अगर आपको इंटरनेशनल करवाना है तो फिर ये दो मेन बॉडीज हैं जो क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम करवाएं। अब कैप के क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम को मैं बहुत डिटेल में आपसे बताऊंगी कि अगर आपको नए सिरे से अपनी लैब में स्टार्ट करना है तो आप किस तरह इसको गो अबाउट करोगे। ये क्या है कैप एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम? इट इज एन इंटर लेबोरेटरी पीयर प्रोग्राम that compares a laboratory's test results using unknown specimens to results from other laboratories using same or similar methods. अब आप कर रहे हो, ये इंटर लेबोरेटरी प्रोग्राम है, आपस में लेबोरेटरीज एक ग्रुप बना लेती है जिसको कहते हैं पीयर ग्रुप। ठीक है, ये पीयर ग्रुप बनता है। तो दिस इज उसमें क्या होता है, पीयर ग्रुप कैसे बनता है, जैसे मैं अब एक टेस्ट है, मैं एक मेथड से कर रही हूँ, ठीक है, ग्लूकोज में कर रही हूँ हेक्सोकाइनेज मेथड से। अब जो सारी लैब्स हैं जो ग्लूकोज हेक्सोकाइनेज मेथड से कर रही हैं वो एक पीयर ग्रुप बन जाता है। ठीक है, तो उसके अंदर फिर आपको उसके अंदर आपकी मशीन भी देनी पड़ती है। अगर मैं कर रही हूँ रॉश पे तो मैं अपना रॉश का भी लिखूंगी, तो रॉश हेक्सोकाइनेज मेथड और रॉश की मशीन पे जो काम कर रहा है वो एक पीयर ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से पीयर ग्रुप्स बनाते हैं। अब वो ग्रुप के आपस में फिर कंपैरिजन होता है, वो आपको कंपेयर करते हैं उसी पीयर ग्रुप के साथ। अगर मैं हेक्सोकाइनेज ग्लूकोज कर रही हूँ तो मुझे वो जो ग्लूकोज ऑक्सीडेज वाले से कंपेयर नहीं करेंगे, वो मेरे हेक्सोकाइनेज से ही कंपेयर करेंगे। ठीक है, इट इज अ की इंडिकेटर ऑफ लेबोरेटरी क्वालिटी मॉनिटर्ड ऑन एन ऑनगोइंग बेसिस। ये वही हमने जो बात की कि लेबोरेटरी क्वालिटी को इंडिकेट कर रहा है कि आपकी लेबोरेटरी की क्वालिटी कैसी है, आपके टेस्ट की, आपके रिजल्ट्स की क्वालिटी कैसी है, और ये ऑनगोइंग बेसिस है। ये साल में
3 दफा होता है, अब हर साल करो तो ये ऑनगोइंग, हर 2-3 महीने के बाद आपको ये करना पड़ता है। The CAP PT program includes all areas of the clinical laboratory. CAP का ये प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग प्रोग्राम जो है वो आपकी क्लिनिकल लेबोरेटरी, अगर आपके पास बड़ी लैब है जैसे हमारे पास है, हमारे पास सारे स्पेशलिटीज है, केमिकल पैथोलॉजी हो गया, हीमाटोलॉजी, मॉलिक्यूलर, हिस्टोपैथोलॉजी, सारी चीजों की आपको उसमें पीटी प्रोग्राम में आप इंक्लूड करवा सकते हो। It analyzes the pre-analytical, analytical and post-analytical processes of test. सारे processes pre-analytical, analytical, post-analytical सबके बारे में आपको पता चलता है इसमें। अच्छा, things to do before you order the CAP, EQA और PT program. अब आपने सिर्फ सोचा कि मुझे ये करना है। अब आप क्या करोगे कि डिफाइन लेबोरेटरी टेस्ट मेन्यू। आप अपने लेबोरेटरी के टेस्ट नोट करोगे कि कितने टेस्ट हैं आपके पास लेबोरेटरी, कि कौन से टेस्ट आप करते हो और कौन से टेस्ट को आपको पीटी में शामिल करना है। आइडेंटिफाई द नीडेड कैप पीटी EQA प्रोग्राम्स। अब कैप के अंदर डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, हर टेस्ट का अलग नहीं है, उसके पास ग्रुप्स हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, तो आप वो प्रोग्राम को आप आइडेंटिफाई करोगे कि मुझे ये प्रोग्राम सूट करेगा, मेरी लैब के हिसाब से मुझे ये प्रोग्राम सूट करेगा, तो आप इस तरह उसको आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा आपको प्रोग्राम चाहिए, कौन सा आपकी लैब के लिए सूटेबल है। Make a list of all tests performed in the laboratory, including the following information for each. अब आपने टेस्ट के लिस्ट बनाई, एल्ब्यूमिन, बिलिरुबिन, सारे जो भी आप टेस्ट कर रहे हो, प्रोटीन्स, ग्लूकोज, सारे टेस्ट, आपके टेस्ट का नेम लिखो, उसके साथ उस टेस्ट का इंस्ट्रूमेंट, मॉडल और किट, मैन्युफैक्चरर एंड मेथड यूज्ड। ठीक है, अब इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज किया, मैंने रॉश का इंस्ट्रूमेंट यूज किया, मॉडल कौन सा है उसका, मैन्युफैक्चरर कौन सा है, रॉश है तो रॉश का इंस्ट्रूमेंट का नाम होगा कुछ भी। ठीक है, मेथड कौन सा है, ग्लूकोज के लिए तो हेक्सोकाइनेज। ठीक है, तो आप पूरा नोट करोगे हर टेस्ट का कि आपको उसका इंस्ट्रूमेंट, तो चले बहुत सारे टेस्ट एक ही इंस्ट्रूमेंट पर हो रहे हैं, लेकिन मेथड हर टेस्ट का डिफरेंट है, तो आपको हर टेस्ट का मेथड आपको उसके किट लिटरेचर में से निकालना पड़ेगा कि कौन सा मेथड आप यूज कर रहे हो। स्पेसिमेन टाइप होल ब्लड या यूरिन, होल ब्लड से करना है, आपको यूरिन को पीटी में डालना है, आपको और चीजें बॉडी फ्लूइड्स डालने हैं, तो आप स्पेसिमेन टाइप भी नोट करोगे। सिलेक्ट कैप प्रोग्राम्स टू ऑर्डर। अब आपके पास बहुत सारे कैप प्रोग्राम्स हैं, आप उसको सिलेक्ट करोगे कि आपको कौन सा प्रोग्राम सूटेबल है आपके टेस्ट के लिए, आपकी लैब के लिए। ठीक है, तो किस तरह होता है ये, जनरल केमिस्ट्री के अंदर डिफरेंट प्रोग्राम्स जो है, उसमें क्या होता है, in general chemistry and therapeutic drugs there are different programs to choose from। सही है, इसमें क्या क्या हो, एक C1 आता है, ये सिर्फ हम केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री को मैं डिटेल में बताऊंगी, बाकी चीजें थोड़ा सा ओवररेट होंगी। जनरल केमिस्ट्री के अंदर एक C1 प्रोग्राम होता है। C1 प्रोग्राम जो है वो काफी बेसिक है, इसके अंदर रूटीन सारे टेस्ट हैं, लेकिन इसके अंदर जो थोड़े से स्पेशल टेस्ट होते हैं जैसे लाइपेज है, लैक्टेट है, इस तरह के टेस्ट, आयरन प्रोफाइल है, वो नहीं अवेलेबल। ठीक है, फिर C3X जो है, ये जो प्रोग्राम है, ये एक जनरल केमिस्ट्री का कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है। इसके अंदर क्या होता है कि आपके ये लाइपेज, लैक्टेज जिससे पहले बात की वो भी आ गया, उसके अंदर आपके आयरन प्रोफाइल भी आ गया, उसके अंदर थायराइड के हार्मोन्स भी आ गए, कोर्टिसोल भी आ गया, तो ये काफी हद तक जनरल और कॉम्प्रिहेंसिव है, काफी बहुत सारे टेस्ट हैं इसके अंदर। फिर C4 जो है जनरल केमिस्ट्री, इसमें बहुत ही कम टेस्ट है, इसमें ALT, AST, एल्ब्यूमिन ये सब भी नहीं है, बहुत ही कम टेस्ट है। अगर आपकी बहुत ही छोटी लैब है और आपको कुछ ही टेस्ट करवाने हैं तो आप ये C4 ले सकते हो। फिर एक जो है CZX या CZ2X, ये जो है ये जनरल केमिस्ट्री, ये वाला जो C3X वाला जो था ना, इस ये जनरल केमिस्ट्री को भी यूज किया हुआ है और उसके साथ उसका ये TDM भी है, थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग भी शामिल है, तो ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट है। अगर आप जनरल केमिस्ट्री भी पूरी कर रहे हो, थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग भी पूरी कर रहे हो, बहुत बड़ी लैब है आपकी, तो आप फिर ये वाला यूज करो। अच्छा, Z जो है ये सिर्फ थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग का है, तो आपको सिर्फ TDM करना है तो आप इसको सिर्फ Z यूज करोगे। ठीक है, फिर और बहुत सारे टेस्ट हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं फॉर यूरिन केमिस्ट्री, बॉडी फ्लूइड केमिस्ट्री, CSF केमिस्ट्री, मेनी अदर पैरामीटर्स, बहुत सारे पैरामीटर्स के लिए आपको है, आप जितना चाहो, जितना ज्यादा चाहो अपने लैब को पीटी करवा सकते हो।
एंडोक्रिनोलॉजी के अंदर ये के और के प्रोग्राम्स है, ये है प्रोग्राम कोड फॉर एंडोक्रिनोलॉजी। इसके अंदर सारे एंडोक्राइन टेस्ट हैं, सारे हार्मोन्स हैं। तो ये आप डाल सकते, कुछ हार्मोन्स आपके C3X में भी हैं, जैसे थायराइड के सारे हैं, TSH, FT3, FT4 और कोर्टिसोल भी। लेकिन उससे ज्यादा आपको एंडोक्रिनोलॉजी का करनी है तो फिर इसके अंदर सारी एंडोक्रिनोलॉजी शामिल है, बीटा ECG, वो सारी चीजें। फिर ब्लड गैस, क्रिटिकल केयर एंड ऑक्सीमीट्री अगर आपको करना है, ये आप यूज कर सकते हो। टॉक्सिकोलॉजी आपको करना है, कैलिब्रेशन, वेरिफिकेशन, लिनियरिटी, ये सारी चीजें करनी है। तो आप डिफरेंट प्रोग्राम्स है, आप जितना ज्यादा आप करो उतना अच्छा है, जितना ज्यादा आप कर सकते हो, आप अफोर्ड कर सकते हो। ये एक्सपेंसिव होता है, डॉलर्स में पे करना होता है, तो जितना आपकी लैब अफोर्ड कर सकती है, आपको अलाउड है मैनेजमेंट की तरफ से, आप उसको कर लो। फिर ये तो हो गया केमिस्ट्री। इसके अलावा हीमाटोलॉजी के भी हैं, कोएगुलेशन, बैक्टीरियोलॉजी, सर्जिकल पैथोलॉजी, साइटोपैथोलॉजी, मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी। हर सेक्शन ऑफ द लैब के अपना पीटी प्रोग्राम है, वो उसमें आप अपने टेस्ट के हिसाब से चूज कर सकते हो। हाउ टू ऑर्डर किस तरह करते हैं, आपको अगर करना है, अब क्या सोचोगे आप, कंप्लीट द ऑर्डर फॉर्म। एक ऑर्डर फॉर्म आता है जिसको फॉर्म आप फिल करके पूरा कंप्लीट कर लोगे। ईमेल द ऑर्डर टू कैप इंक्लूडिंग अ फॉर्म ऑफ पेमेंट। कोई भी पेमेंट का तरीका, पे ऑर्डर है, ये है, किसी तरह भी आप फॉर्म ऑफ ईमेल करोगे आप ऑर्डर को, और आप पेमेंट करोगे। ऑर्डर शुड बी प्लेस्ड बिफोर 1 December ऑफ ईच ईयर। अगर आपको 2022 के लिए अगर करना है तो आप 1 December 2021 से पहले आप ऑर्डर आपका पहुंच जाना चाहिए कैप पे, वरना वो फिर नहीं एक्सेप्ट करते। सैंपल्स रिसीव्ड फ्रॉम कैप। अब कैप ने आपने ऑर्डर भेज दिया, अब कैप सैंपल्स आपको भेजेगा। किस तरह आते हैं सैंपल्स, फेडेक्स के अंदर कोरियर सर्विस के थ्रू सैंपल्स आते हैं आपके पास। 3 shipments per year। वो जो बॉक्स होता है ना, ट्रांसपोर्टेशन जो बॉक्स होता है व्हाइट स्टाइरोफोम वाला, उसके अंदर सैंपल्स आते हैं। 3 shipments per year। एक साल में 3 दफा आते हैं यूजुअली। एक दफा एक आता है अबाउट मार्च, फरवरी मार्च में, फिर एक आता है अगस्त में, फिर एक आता है नवंबर में। इस तरह एक साल में 3 shipments आते हैं। Samples are transported with dry ice or cool packs। उसके अंदर dry ice या cool packs पड़े हुए होते हैं। There are 5 samples of 5 ml liquid serum specimens। अब 5 specimens होते हैं, 5 specimens होते हैं, और उसके हर उसमें 5 ml liquid serum होता है। लिक्विड बेस्ड होता है, ये आप लायोफिलाइज्ड ड्राई नहीं होता कि आपको कॉन्स्टिट्यूट करना पड़े और उसके अंदर एरर्स हो। ये लिक्विड बेस्ड होता है, आइस पैक में आता है, आइस के साथ आता है, तो आपका खराब नहीं होता। तो ये 5 सैंपल्स होते हैं उसके। अच्छा, अगर आपके पास डिपेंड ऑन योर टेस्ट, अगर आपने छोटा प्रोग्राम लिया है तो आपको सिर्फ 5 आ जाएंगे सैंपल्स। अगर आपका जो प्रोग्राम है बड़ा है, कॉम्प्रिहेंसिव है, C3 वाला है या C3 और Z वाला है, जिसमें बहुत सारे टेस्ट हैं, बहुत सारे टेस्ट हैं, तो आप उसको उसी 5 के डुप्लीकेट में आ सकता है। इसका मतलब 10 आ गया, वही 5 के 2-2, या 5 के 3-3 भी आ सकते हैं। तो ट्रिप्लीकेट में या डुप्लीकेट में भी आ सकता है सैंपल। अच्छा, फिर रिपोर्टिंग के लिए आपको भी ऑप्शन है कि आप कन्वेंशनल मेथड यूज करो या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में रिपोर्टिंग करो। आप अगर मिलीग्राम पर डीएल में रिपोर्ट कर रहे हो तो वो भी आप लिख सकते हो। अगर आप मोल्स में कर रहे हो, एसआई यूनिट्स में कर रहे हो, तो आप वो भी लिख सकते हो। तो वो भी आपके पास ऑप्शन आ जाता है। अच्छा, अपॉन रिसीट, अगर आप अब ये आ गया आपके पास, अब आप क्या करोगे, अनपैक द किट, रिमूव ऑल पैकेजिंग मटेरियल्स एंड कूल पैक्स। सारे पैकेजिंग मटेरियल, कूल पैक्स है, पैकेजिंग मटेरियल सब रिमूव कर दिया आपने। चेक फॉर द फॉलोइंग, क्या क्या चेक करोगे आप, किट इंस्ट्रक्शंस होते हैं इसके साथ, which includes specific kit contents and storage directions। kit instructions की पूरी बुक होती है, उसके अंदर आपको उसके स्टोरेज कंटेंट्स लिखा होता है कि इसमें ये चीज प्रेजेंट है किट में, 5 सैंपल्स है, डुप्लीकेट में है, जो भी आपको लिखा हुआ होता है। ठीक है, स्टोरेज के डायरेक्शंस लिखे होते हैं कि आपको इस चीज को स्टोर किस तरह करना है, फ्रिज में रखना है, कितने टेम्परेचर पे रखना है, वो आप कितने दिन तक आप रख सकते हो, वो आपका स्टोरेज इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं। फिर उसके साथ रिजल्ट फॉर्म आता है, ठीक है, जिसमें आपको रिजल्ट नोट करना है। और फिर पेशेंट के सैंपल, पीटी के सैंपल्स, वो सैंपल्स जो है वो आते हैं। ठीक है, रीड द इंस्ट्रक्शंस, स्टोर द किट अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस अंटिल टेस्टिंग द सैंपल। आपने किट के इंस्ट्रक्शंस पढ़ लिया और आपने उसको किट को स्टोर कर लिया जिस तरह उन्होंने कहा है कि इसको स्टोर किया जाए। ठीक है,
और रिव्यू द रिजल्ट फॉर्म को एक दफा आप रिव्यू कर लें, देख लें। सही। अच्छा, प्री रिक्विजिट्स, इससे पहले आप टेस्ट परफॉर्म करोगे उससे पहले आपको क्या क्या चीजें चाहिए? For each test that you are going to perform, you need method, instrument/reagent। हमने पहले भी बात की कि आपको मेथड चाहिए हर टेस्ट का आप वो निकालोगे किट लिटरेचर और उसका मेथड नोट करोगे कि आप कौन से मेथड से कर रहे हो। हर लैब अपने अपने डिफरेंट मेथड से कर रही होती है, तो आप मेथड नोट करोगे कि आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हो, इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज कर रहे हो। और इंस्ट्रूमेंट है मोस्टली आजकल तो क्लोज सिस्टम्स आ गए, तो इंस्ट्रूमेंट के साथ रिएजेंट उसी कंपनी का होता है, तो आपका रिएजेंट कौन सा है और इंस्ट्रूमेंट कौन सा है। ठीक है। देयर इज अ मेथड मास्टर लिस्ट, इंस्ट्रूमेंट मास्टर लिस्ट एंड रिएजेंट मास्टर लिस्ट विद द कोड नंबर्स। ये मैं आपको बताऊंगी किस तरह होता है। उनके ये जो किट इंस्ट्रक्शंस है उसके साथ एक पूरी बुकलेट टाइप की होती है जिसके अंदर मास्टर लिस्ट्स होती हैं। ठीक है, तो वो मेथड की भी होती है, इंस्ट्रूमेंट की भी होती है, रिएजेंट की भी होती है। मैच योर टेस्ट विद द लिस्ट्स एंड नोट डाउन द कोड नंबर्स ऑफ ईच। अब आपको नंबर्स चाहिए, आपके पास तो पूरी आप कहानी तो नहीं लिखोगे ना कि हेक्सोकाइनेज मेथड इस तरह से, आपको सिर्फ नंबर चाहिए होते हैं, नंबर लिखना होता है वहां पे, तो आप अपना मेथड को नंबर से टैली करोगे। किस तरह करोगे ये देखें, ये एक है, ये है आपकी एंजाइम रिएजेंट मास्टर लिस्ट। ठीक है, एंजाइम रिएजेंट मास्टर लिस्ट, इसके अंदर अगर आप यहाँ देखें, अगर आप एबट का की मशीन यूज कर रहे हो तो आप इसका ये नंबर यूज करोगे 15189। ठीक है, अगर आप जैसे ये है रैंडॉक्स की मशीन यूज कर रहे हो तो ये आप नंबर लिखोगे 1077। ठीक है, रॉश की मशीन यूज कर रहे हो तो आप लिखोगे 1788। तो ये मशीन के साथ उसका नंबर है। एंजाइम कौन सी मशीन, कौन सी एंजाइम यूज कर रहे हो आप। ठीक है, अच्छा, ये जो है वो मेथड मास्टर लिस्ट है। मेथड के अंदर क्या होगा कि जैसे अपने एल्ब्यूमिन है, आप डाई बाइंडिंग ब्रोमोक्रिसॉल ग्रीन यूज कर रहे हो मेथड, तो आप इसका नंबर नोट करोगे 1099। अल्कलाइन ये तो हो गया। अमोनिया का आप नंबर नोट करोगे। ठीक है, जैसे बिलीरुबिन है, टोटल बिलीरुबिन और डायरेक्ट बिलीरुबिन, इसका जो नंबर है, जैसे मैं हम लोग ये यूज करते हैं डायजो डाइमिथाइल सल्फोक्साइड विदाउट ग्लाइड, तो हम लोग इसको मार्क कर लेंगे 1040। ठीक है, तो जो आप मेथड यूज कर रहे हो वो आप मेथड इसमें ढूंढो और आप फिर उसका नंबर नोट कर लो अलग से। ठीक है, सिमिलरली ये हो गया इंस्ट्रूमेंट का। इंस्ट्रूमेंट मास्टर लिस्ट में जैसे आपके पास आबेट आर्किटेक्ट है अगर सी सिस्टम, तो आप 2160 नंबर यूज करोगे। हम लोग यूज करते हैं ये रॉश हिटाची सिस्टम, तो हम ये लिखेंगे 1705। ठीक है, तो जो भी आपका मशीन है आपकी, उसका आप नंबर नोट करोगे। मशीन तो यूजुअली एक मशीन पे बहुत सारे टेस्ट हो रहे होते हैं, तो मशीन तो एक ही नंबर चलेगा हर दफा, लेकिन मेथड, हर मेथड का, हर टेस्ट का अपना मेथड नंबर होगा। तो वो बहुत जरूरी है कि आपको मेथड नंबर सही से आप निकाल दो। ओके, नाउ एनालाइजिंग द सैंपल्स। अब सैंपल्स को एनालाइज किस तरह करोगे? एज पर क्लाया, PT specimens must be tested with the laboratory's regular workload using routine methods। ऐसा नहीं कि आज मुझे PT टेस्ट करना है तो आज मैं मंथली मेंटेनेंस भी कर रही हूँ, वीकली मेंटेनेंस भी कर रही हूँ, डेली मेंटेनेंस भी कर रही हूँ, फिर उसके कंट्रोल भी सारे लगा रही हूँ, कैलिब्रेट भी सारे कर रही हूँ। नहीं, जो आप डेली में करते हो, जैसे हमारी लैब में डेली मॉर्निंग का वो लगता है, मेंटेनेंस लगती है, मॉर्निंग के कंट्रोल्स लगते हैं, जो कैलिब्रेशन की जरूरत होती है वो पैरामीटर्स कैलिब्रेट होते हैं और दोबारा तक हो सकते हैं। आई थिंक सब लैब्स में यही होता होगा। ठीक है, तो ये आपका डेली। अब फिर उसके बाद सैंपल्स लगना शुरू हो जाते हैं। अब आप सैंपल डायरेक्ट या तो पीटी लगा लो, या ये सब करके आप कुछ सैंपल्स लगा के बाद में पीटी लगा सकते हो, लेकिन आपके रेगुलर वर्कलोड के साथ ही होना चाहिए। ठीक है, note down the results in the result form along with the method code, instrument code slash reagent code and unit of measure। अब आप जो रिजल्ट फॉर्म है उसके अंदर आप सारा नोट डाउन करोगे, मेथड कोड लिखोगे जो आपने नंबर निकाला था, इंस्ट्रूमेंट का नंबर जो निकाला था। यूजुअली कैप वाले जो अगर इंस्ट्रूमेंट मांगते हैं तो फिर रिएजेंट कोड नहीं मांगते, एक ही चीज मांगते हैं। सो आपने अगर इंस्ट्रूमेंट कोड लिख दिया तो रिएजेंट कोड की जरूरत नहीं है। अगर इंस्ट्रूमेंट कोड नहीं है फॉर एग्जांपल किसी पैरामीटर में, तो रिएजेंट कोड चाहिए होता है इनका। ठीक है, यूनिट ऑफ मेजर, यूनिट आप कौन सा डाल रहे हो। ठीक है, एंड सेंड द रिजल्ट्स टू कैप। अब ये मैंने आपको स्पेसिमेन एक वो दिखाया हुआ है हमारा रिजल्ट। अब ये बिलीरुबिन डायरेक्ट का रिजल्ट है। ठीक है,
मेथड कोड, मेथड उसका वो डाइसो रिएक्शन था, तो 1040 इसका मेथड कोड था जो मैंने पीछे दिखाया था आपको। इंस्ट्रूमेंट कोड ये 1705 रोश की इंस्ट्रूमेंट का कोड है ये। रिएजेंट कोड नॉट रिक्वायर्ड। अब देखो इंस्ट्रूमेंट कोड दिया है तो दे डू नॉट रिक्वायर द रिएजेंट कोड, ठीक है। यूनिट ऑफ मेजर, हम मिलीग्राम पर डीएल में मेजर कर रहे हैं तो यूनिट ऑफ हमने इसको टिक कर दिया, सही। अच्छा, अब ये सैंपल्स थे 5। एक सैंपल था उसका नाम था CHM1, इसका रिजल्ट आया 0.1। CHM2 का रिजल्ट आया 1.8। CHM3 का आया 0.6, इसका आया CHM4 का आया 0.6, CHM5 का आया 0.6, ठीक है। ये हो गया बिलीरुबिन डायरेक्ट। फिर बिलीरुबिन टोटल का वही मेथड कोड, इंस्ट्रूमेंट कोड, रिएजेंट कोड, यूनिट लिखोगे आप, इसके रिजल्ट्स लिखोगे सारे। कैल्शियम के अब कैल्शियम का देखिए, इसका तो मेथड सेम था ना, डायरेक्ट एंड टोटल का तो सेम कोड था। कैल्शियम का मेथड कोड डिफरेंट हो जाएगा डेफिनेटली, तो इसका कैल्शियम का मेथड कोड है 1132। इंस्ट्रूमेंट वही चल रही है इंस्ट्रूमेंट, तो इसका इंस्ट्रूमेंट कोड सेम रहेगा। यूनिट ऑफ मेजर मिलीग्राम पर डीएल में हम मेजर कर रहे हैं, ठीक है। इसके रिजल्ट्स आ गए, केम 1 का, केम 2, केम 3, केम 4, केम 5 सबके रिजल्ट्स आ गए हमारे पास। इस तरह आप सारे जो पैरामीटर्स है उसके रिजल्ट्स आप नोट करोगे इसमें रिजल्ट शीट में, और आप ये रिजल्ट सेंड कर दोगे टू कैप, फैक्स कर दो, जो भी कर दो। उनकी एक डेडलाइन होती है, उस डेडलाइन से पहले आपको ये पहुंच जाना चाहिए कैप के पास, ठीक है। अब कैप जो है वो 1-1.5 महीने में आपको उसका अपना रिजल्ट, वहां से रिजल्ट भेजता है आपको कि आपके टेस्टिंग का क्या रिजल्ट था। विद द रिजल्ट ऑफ ईच एनालिट दे विल गिव यू द योर मीन, क्या कह देंगे, आपका रिजल्ट बताएंगे वो लोग, मीन बताएंगे। पूरा जो पीयर ग्रुप है, आपकी मशीन आपके मेथड के साथ जो भी लैब्स पीटी में पार्टिसिपेट किया उन्होंने, उन सबका मीन निकालेगा और वो मीन बताएगा। तो आप कंपेयर कर सकते हो कि ग्रुप के मीन से आपका मेथड कितना कितना फर्क पड़ता है, कितना डिफरेंट है। जैसे कल डॉक्टर फातिमा करानी ने कहा ना कि आप इससे आपका अपना बायस निकाल सकते हो कि ग्रुप का मीन ये है, मेरा रिजल्ट ये है, तो मेरा बायस कितना है। दिस इज द वे टू टेक आउट द बायस। SD वो लोग देते हैं उसका नंबर ऑफ लैब्स, कितनी लैब्स पार्टिसिपेट किया, उसी पेयर ग्रुप में कितनी लैब्स होंगी, थाउजेंड्स ऑफ लैब्स जिन्होंने ये बिलीरुबिन का दिया होगा। लेकिन आपके पेयर ग्रुप में कितनी लैब्स थी, विद द सेम मेथड, विद द सेम कोड मशीन, आपकी कितनी लैब्स थी, तो फिर उस हिसाब से वो पेयर ग्रुप बनाते हैं। तो उसमें उस पेयर ग्रुप में कितनी लैब्स थी वो यहाँ मेंशन करेंगे। SDI स्टैंडर्ड डिविएशन इंडेक्स, ये मैं आपको नेक्स्ट टाइम में बता दूं कि ये क्या होता है। फिर उसके बाद योर ग्रेड एक्सेप्टेबल और नॉट, वो कहते हैं कि एक्सेप्टेबल है या नॉट एक्सेप्टेबल। अगर आपने कहा नहीं, आपका रिजल्ट सही आया तो नॉट एक्सेप्टेबल करके भेज देते हैं, इसका मतलब है आप उस पैरामीटर में फेल हो गए। ग्राफ शोइंग रिलेटिव डिस्टेंस ऑफ योर रिजल्ट फ्रॉम द टारगेट, और एक छोटा सा ग्राफ होता है जिससे वो शो करता है कि टारगेट कितना था, मीन कितना था और आपका रिजल्ट कितना दूर था उससे, ठीक है। SDI स्टैंडर्ड डिविएशन इंडेक्स, ये क्या चीज होती है, इट इज अ पेयर बेस्ड एस्टिमेट ऑफ रिलायबिलिटी। इसमें क्या होता है, इसको कैलकुलेट किस तरह करते हैं, इट रिप्रेजेंट्स द डिविएशन ऑफ इंडिविजुअल लेबोरेटरी परफॉर्मेंस फ्रॉम द पीयर ग्रुप। मेरी लैब ने ये रिजल्ट दिया, पूरे ग्रुप ने ये रिजल्ट दिया, उसको कंपेयर करता है, इसको कहते हैं हम SDI। SDI कैलकुलेट किस तरह होता है, लैब रिजल्ट माइनस द मीन वैल्यू ऑफ द पीयर ग्रुप, पीयर ग्रुप का मीन, मेरा रिजल्ट माइनस द पीयर ग्रुप मीन डिवाइडेड बाय द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द पीयर ग्रुप। पीयर ग्रुप के पूरे जो रिजल्ट्स है उसका SD निकाला, स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला, उसको डिवाइड किया इससे, ठीक है। तो ये बन जाता है SDI, जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन इंडेक्स, ठीक है। इस तरह का रिजल्ट आता है कैप की तरफ से। ये देखिए, ये ट्राइग्लिसराइड का रिजल्ट है हमारा, उन्होंने यह मेथड मेंशन कर दिया है, रॉच अटैचिंग सिस्टम्स मेजर कर दिए हैं। अच्छा, अब ये जो सैंपल था इसके मेरा रिजल्ट था 155, मीन कितना आया 155.92, ये मीन था सब पूरे पेयर ग्रुप्स का। SD था ये 5.3 इज द SD। नंबर ऑफ लैब्स कितनी है 46, मेरे पेयर ग्रुप के अंदर 46 लैब्स। SDI क्या निकला 0.2, ठीक है। और ये लिमिट्स ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी बाय ग्रेड एक्सेप्टेबल, ये मेरा टेस्ट एक्सेप्टेबल हो गया, ठीक है। और फिर इसके साथ ये ग्राफ दिया उन्होंने ये मीन है, बीच की लाइन मीन है, और आपका टेस्ट मीन से कितना ऊपर या नीचे जा रहा है,
जितना मीन से करीब होगा आपका टेस्ट, उसका मतलब है कि आपका टेस्ट अच्छा है। ठीक है, तो जितना ये मीन से, तो इस ग्राफ के अंदर शो कर रहा है कि मीन से आपका कितना करीब है टेस्ट, तो ये आपका अच्छे उसमें आ जाता है। ठीक है, अच्छा, अब क्या हुआ, आफ्टर यू हैव एनालाइज, ये हर हर साइकिल के बाद ये होता है। एक मार्च में आया, फरवरी मार्च में सैंपल आया, मैंने उसको 10-15-20 दिन में सैंपल टेस्ट करके रिजल्ट भेज दिए, फिर उन्होंने 1-1.5 महीने के बाद रिजल्ट दिया। ये एक साइकिल का रिजल्ट था। ठीक है, अब आपने 3 साइकिल कंप्लीट किए, साल के 3 साइकिल होते हैं ना, 3 साइकिल आपने कंप्लीट किए, अब वो पूरे साल का एक क्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बताता है। ठीक है, वेदर सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल। किस तरह से होता है ये इस तरह से रिजल्ट आता है उनका। जैसे ये ALT है, ये प्रोफिशिएंसी इवेंट 3, 1 2 3 3 इवेंट्स होते हैं ना, तो प्रोफिशिएंसी इवेंट 3, प्रोफिशिएंसी इवेंट 1, प्रोफिशिएंसी इवेंट 2। इसके अंदर से आपका ये ALT में स्कोर 100, ये 100%, 100%, 100%, तो क्या हुआ, क्यूमुलेटिव पूरे साल का सक्सेसफुल हो गया। सिमिलरली ये एल्ब्यूमिन भी सक्सेसफुल है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज भी सक्सेसफुल, ये सारे सक्सेसफुल रिजल्ट्स चल रहे हैं। सो आपका पूरे साल का आपको पता चलता है। अगर आपने एक में भी फेल किया है, एक में फेल किया तो वो शायद चला लेते हैं, लेकिन अगर आप 2 में फेल हो गए तो वो अनसक्सेसफुल चला जाता है, फिर वो पैरामीटर आपको उसकी वर्कअप करना पड़ेगा कि ये क्यों मेरा सही नहीं हुआ। ठीक है, सो किसी का कोई अगर क्वेश्चन है कैप के बारे में तो आप पूछ लें। किसी का कोई क्वेश्चन, वरना मैं फिर रिकॉर्ड स्टार्ट करूंगी। कोई नजर नहीं आ रहा मुझे क्वेश्चन। अगर आप अनम्यूट कर लें, अगर किसी को रेज हैंड कर लें, अनम्यूट कर लें। मैम नो, अगर कोई रेज हैंड कर लेगा मैं उसको अनम्यूट कर दूंगा, लेकिन अभी तक कोई रेज हैंड नहीं किया किसी ने। ठीक जी मैम। ओके, नेक्स्ट आई विल कम टू विकास। विकास is the other external international quality assurance assessment program. This is Brandox International Quality Assessment Scheme. ठीक है, इसकी डिटेल्स भी उसी तरह होती हैं, उसका भी इसी तरह ग्रुप्स वो आते हैं, पीयर ग्रुप्स बनाने होते हैं, आपको मेथड्स आपको आइडेंटिफाई करने होते हैं। वो तो सारी चीजें आपको शुरू में सबको करना पड़ेगा कि आपको मेथड आइडेंटिफाई करना है, आपको अपनी मशीन का वो आइडेंटिफाई करना है और आपको इनको बताना है। ठीक है, ये जो है एक रिजल्ट है, प्रोटीन, टोटल प्रोटीन का रिजल्ट है। इस तरह रिकास जो है वो एक पेज पे हर पैरामीटर का रिजल्ट देता है आपको। दिस इज अ सैंपल रिजल्ट। अब आप इसमें देखें तो ये व्हाइट जो है वो ऑल मेथड्स है, ये वाला आप देखें, अगर ये व्हाइट ऑल मेथड्स, ये ग्राफ के अंदर आप देखें ये व्हाइट वाला जो है वो ऑल मेथड्स को शो कर रहा है। ठीक है, प्रोटीन के लिए। अच्छा, ग्रीन जो है बायोरेट रिएक्शन एंड पॉइंट, जो लोग बायोरेट रिएक्शन एंड पॉइंट कर रहे हैं वो इस हिस्से में आ गए। ठीक है, और फिर जो बायोरेट रिएक्शन एंड पॉइंट के साथ साथ रोश कोबार C11 यूज कर रहा है, वो आपका ये बन गया पीयर ग्रुप, ये वाला छोटा वाला। ठीक है, तो इस तरह से ये मेंशन कर रहे हैं कि कितने लोग हैं जो सारे मेथड से कर रहे हैं, कितने लोग बायोरेट रिएक्शन एंड पॉइंट से कर रहे हैं, और कितने लोग इस इंस्ट्रूमेंट से भी कर रहे हैं टेस्ट। ठीक है, अच्छा, आपका यहाँ है आया योर रिजल्ट शो किया ये 8.8। ठीक है, ये मेरा मेरा रिजल्ट है। मीन फॉर कंपैरिजन, अब ये मीन है पीयर ग्रुप का, पीयर ग्रुप मीन निकाला है मैंने। ठीक है, इसी तरह स्टैंडर्ड डिविएशन इंडेक्स निकाला है 1.53। ये सारी चीजें मैं आपको फिर अभी समझाती हूँ। ठीक है, इसके साथ साथ ये उन्होंने चार्ट्स दिए हुए, ये है LJ चार्ट आपका, चाहिए लेबोरेटरी परफॉर्मेंस का, ये है टारगेट स्कोर, ये सारी चीजें आएंगी, मैं आपको समझाती हूँ। ये टारगेट स्कोर आ गया, ये आपका परसेंट डिविएशन आ गया, एंड ये आ गया परसेंट डिविएशन बाय कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको रिपोर्ट मिलती है विकास की। साथ साथ ये क्या दिया हुआ होता है हर पैरामीटर का, जैसे कि एल्ब्यूमिन है, मीन, ग्रुप मीन क्या है 5.68, योर रिजल्ट, आपकी लैब का रिजल्ट है 5.88, SDI निकला 1.02। ठीक है, ये जो है रनिंग मीन स्टैंडर्ड डिविएशन इंडेक्स, ये मैं आपको बताती हूँ कॉन्सिक्वेंटली ये क्या है, ये है। फिर परसेंट डिविएशन है,
रनिंग मीन, परसेंट डेविएशन, इस तरह से आपका परफॉर्मेंस जज होता है। ये सारे पैरामीटर्स हैं जिनके साथ आपका परफॉर्मेंस जज होता है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स यूज्ड इन विकास, क्या क्या स्टैटिस्टिक्स यूज हो रहे हैं? एसडीआई हम कर चुके हैं, दोबारा एक बार रिपीट कर लूंगी। टारगेट स्कोर और परसेंट डेविएशन। एसडीआई वही हमने बताया कि पीयर ग्रुप आपका रिजल्ट माइनस द पीयर ग्रुप रिजल्ट, मीन, पीयर ग्रुप का मीन निकाला, उनका रिजल्ट और आपका रिजल्ट को माइनस करते हैं, डिवाइड करते हैं बाय द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पीयर ग्रुप। इससे आप डिवाइड करते हैं तो हमको मिलता है स्टैंडर्ड डेविएशन इंडेक्स। ठीक है, अच्छा, फिर इंटरप्रिटेशन किस तरह होती है स्टैंडर्ड डेविएशन इंडेक्स की? The target SDI is 0.0, which indicates a perfect comparison with the peer group. टारगेट क्या है कि पीयर ग्रुप के साथ आपका परफेक्टली मैच होना चाहिए। तो एसडीआई कितना होना चाहिए? 0.0 एसडीआई बेस्ट एसडीआई है, एक्सीलेंट रिजल्ट है आपका। ठीक है, 1.25 or less is considered acceptable. ठीक है, 1.25 से 1.49 is considered acceptable to marginal performance. Some investigation of the test system may be required. थोड़ा सा आप इन्वेस्टिगेट कर लो, आपका एक्सेप्टेबल तो हो गया है, लेकिन थोड़ा इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है कि क्या कोई गड़बड़ थोड़ी सी है इसमें। 1.5 to 1.99 is considered marginal performance and investigation of the test system is recommended. इसमें क्या है कि आपको इन्वेस्टिगेशन जरूरी है, मार्जिनल तो है, पास कर दिया चलो उन्होंने, जैसे कहते हैं ना धक्का स्टार्ट पास हो गया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन आपको अपना देखना है कि आपका सिस्टम सही है यानी कुछ गड़बड़ है जरूर, तो आपको टेस्ट करना है। 2.0 or greater is generally considered to be unacceptable performance and remedial action is usually required. अगर 2 है, 2.0 और greater, इसका मतलब है कि आपको unacceptable है परफॉर्मेंस आपकी और आपको रेमेडियल एक्शन करने की जरूरत है। ये वही वाला ग्राफ है जो मैंने आपको कैप में दिखाया था, ये 0 है, ये 1 एसडीआई वैल्यूज है, ये 1 एसडीआई, 2 एसडीआई, 2 एसडीआई तक एक्सेप्टेबल है, ये देखिए, और फिर 2 एसडीआई से जब ऊपर चला जाता है तो ये आउट ऑफ लिमिट्स हो जाता है, तो आउट ऑफ लिमिट्स इज अनएक्सेप्टेबल। ठीक है, आपका रिजल्ट जितना करीब होगा इस मीन वैल्यू से उतना आपका अच्छा रिजल्ट होगा। टारगेट स्कोर क्या चीज है? It is the difference between participant result and the mean for comparison of performance of your result for each Vikas sample and also shows how your laboratory's performance varies with time. अब आपके difference है between the participant result and the mean of the performance. ठीक है, ये इनके दरमियान है, आप mean का लिया और participant result का difference निकाला, इसको कहते हैं टारगेट स्कोर। अब टारगेट स्कोर किस तरह देखा जाता है? लेस देन 40 इज अनएक्सेप्टेबल, 40 से कम है तो अनएक्सेप्टेबल, 41 to 50 नीड फॉर इंप्रूवमेंट, 51 to 70% acceptable, 71 to 100% good and 101 to 120% excellent. इसका मतलब है कि 100 से ऊपर एक्सेलेंट है, 100 तक अच्छा है, फिर उसके बाद आपको नीड फॉर इंप्रूवमेंट होती जाती है। तो ये आपको जो पिछला मैंने ग्राफ दिखाया था प्रोटीन का जो पूरा रिजल्ट के साथ, ये टारगेट स्कोर का ग्राफ है। ठीक है, ये आपका है ऊपर वाला 120 to 100, ये आपका एक्सेलेंट है, सही। फिर 100 से लेके 70 ये हो गया गुड, ये रहा गुड लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, 70 से 50 एक्सेप्टेबल, यहाँ भी आपका अगर रिजल्ट पड़ रहा है तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, चलो ठीक है। 40 to 50 नीड फॉर इंप्रूवमेंट, इंप्रूवमेंट की जरूरत है, और अगर 40 से नीचे चला गया तो ये अनएक्सेप्टेबल हो जाता है। ठीक है, अच्छा, अब percent deviation. Percent deviation sometimes known as percentage error or bias. Percent deviation किस तरह कैलकुलेट होता है? Participant result minus mean comparison multiplied by 100 divided by mean of comparison. SDI हमने किस तरह निकाला था? Participant result minus mean comparison divided by standard deviation और multiplied by 100 नहीं था। इसमें क्या है? Participant result minus mean comparison divided by ये मीन के साथ डिवाइड किया हमने, ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया उसको, तो इससे आपको परसेंट डिविएशन मिलती है। डिविएशन का क्या मतलब है? इंग्लिश के अंदर भी डिविएशन का मतलब है कि आप सीधा सीधा चल रहे हो, आप हट गए रास्ते से, पाथ से हट गए, तो आप कितना हटे, कितना आप पाथ पे चल रहे हो इसका मतलब है बेस्ट है, जितना आप पाथ से दूर जाओगे इसका मतलब है कि आपकी डिविएशन आ रही है। ठीक है,
तो क्लोजर यू आर टू जीरो द बेटर योर परफॉर्मेंस। जितना आप जीरो के साथ हो, लाइन पे, सीधी लाइन पे चल रहे हो, उसके आपकी परफॉर्मेंस बेस्ट है। अब सीधी लाइन से जरा भी हटे, आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी खराब होगी। ठीक है। Your percent deviation is compared to preset acceptable limits of performance. These preset acceptable criteria are defaulted to be the recast target deviations for performance assessment. ये preset acceptable limits recast में बनाए गए हैं target। ठीक है, तो ये जो है ये टारगेट बनाया हुआ है recast, तो ये टारगेट पे होना चाहिए। अब आपके रिजल्ट्स जो हैं वो ये आ रहे हैं, तो आप मीन से जितना भी करीब होगे आपके रिजल्ट अच्छे हैं। तो ये रिजल्ट अच्छे हैं, लेकिन अगर ये रिजल्ट लिया जाए तो ये अच्छा नहीं है। ठीक है, तो जितना आप मीन से दूर होते जाओगे आपका रिजल्ट खराब होता जाएगा। ठीक है। अच्छा, रनिंग मीन स्टैंडर्ड डेविएशन इंडेक्स, ये वही वाला चार्ट है जिसके अंदर ये अब ये निकालते हैं रनिंग मीन स्टैंडर्ड डेविएशन इंडेक्स। ये क्या चीज होती है? एवरेज ऑफ द लास्ट 10 SDIs फॉर अ गिवन पैरामीटर एज अ मेजर ऑफ परफॉर्मेंस ओवर द फुल रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। अब आखिरी 10 SDI उन्होंने निकाले और उसको देखा ओवर द फुल रेंज ऑफ, उसका मतलब है कि फुल रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन भी आपने मेजर किया। Running mean percent deviation and overall running mean percent deviation are presented in the text section of each report. वो जो हमने ये text section देखा था ये वाला, इसके अंदर ये overall running mean standard deviation है और running mean standard deviation। ठीक है। Overall running mean standard deviation is the average of all the parameter running mean standard deviations for a given sample as a measure of overall performance for all parameters over a full range of concentrations। ठीक है। अच्छा, suggested actions if there is evidence of systematic error। अब आपने ये किया, आपको एक systematic error मिला, तो आप क्या क्या करोगे उसके बारे में, उसको कैसे ठीक करोगे? रिव्यू इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल परफॉर्मेंस। इंटरनल क्वालिटी, आपका इंटरनल QC जो है, आपके LJ चार्ट्स हैं, आपकी वेस्टगार्ड रूल्स है, वो आपको रिव्यू करोगे, उसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है। लुक फॉर ट्रेंड्स और शिफ्ट्स that may not yet trigger your rejection rules। अब ऐसे कोई ट्रेंड्स हैं, ऐसे कोई शिफ्ट्स हैं, अभी आपके रिजेक्शन रूल्स को, वेस्टगार्ड रूल्स को ब्रेक नहीं किया, उसने रिजेक्ट नहीं किया, लेकिन शायद उसकी वजह से गड़बड़ आ रही है। असेस द प्रोसेस ऑफ सेटिंग एंड चेंजिंग QC टारगेट वैल्यूज। फिर अगर आपको QC टारगेट वैल्यूज चेंज करनी है, मीन आपके बहुत वो आ रहा है तो आपको वैल्यूज चेंज करनी, तो वो आप कर लो। If recalibration has not yet already occurred, recalibrate the instrument। अगर आपको किसी recalibration की जरूरत है, आप recalibrate करो। If participating in an external QC performance program, review comparative reports for QC performance। दूसरे QCs का देख लो, अगर आपका QC प्रोग्राम है तो दूसरे लोगों का कैसा आ रहा है। If the laboratory performance on a lot of QC material is at consistent variance with the group performance mean, further investigation is warranted। अब आपने ये जो मटेरियल है, सपोजिंग जो एक मटेरियल आया मेरे पास, QC मटेरियल CHM1 जो आया, वो मेरा सारे में गड़बड़ आ रहे हैं, या मतलब सारे मेरे नहीं, सॉरी, सारे जो है मेरे पैरामीटर्स आउट जा रहे हैं। इसका मतलब है कि मैंने अब मेरा QC मटेरियल में फर्क है, QC मटेरियल में फर्क है, या मैं अपनी लैब के अंदर देख रही हूँ कि मैं अगर कंट्रोल्स रन कर रही हूँ, ये सारे कंट्रोल्स आउट आ रहे हैं, इसका मतलब कि मेरे मटेरियल में फर्क है। यूज एसिड कंट्रोल मटेरियल टू इवैल्यूएट परफॉर्मेंस। पास लोग जो हैं वो पूल्ड सीरम को एज कंट्रोल मटेरियल यूज करते हैं, डेली में आप कर लें बेशक, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो फिर आप एसिड कंट्रोल मटेरियल, जो कंपनीज की तरफ से कंट्रोल मटेरियल आते हैं जिसकी वैल्यूज फिक्स्ड होती हैं, वो आप यूज करो टू इवैल्यूएट योर परफॉर्मेंस। Suggested actions if there is evidence of random error। Rule out errors from non-analytical sources। Random error में सबसे पहले आप non-analytical sources देखोगे, transcription errors है, misplaced specimens हैं, calculation errors हैं, ये आपके pre-analytical और आपके post-analytical problems भी random error cause कर सकते हैं। Investigate components of the analytical system। अब आपके मशीन के अंदर आप देख लो कि कोई probes में गड़बड़ है, reaction cells में, reagents में, इसमें तो कोई मसला नहीं है। रिव्यू इंटरनल क्वालिटी परफॉर्मेंस। अपने इंटरनल क्वालिटी परफॉर्मेंस अपने रिव्यू किया कि आपने आपके LJ चार्ट्स ये वो सही हैं, कोई ऐसी ट्रेंड्स या शिफ्ट नहीं है जिसकी वजह से आपका रिजेक्शन रूल नहीं लगा अभी तक, लेकिन शिफ्ट चेंजेस शुरू हो गई हैं। असेस द प्रोसेस ऑफ सेटिंग एंड चेंजिंग QC टारगेट वैल्यूज। आपकी QC टारगेट वैल्यूज अगर चेंज करने की जरूरत है तो वो आप कर लो। यूज एसिड कंट्रोल मटेरियल्स टू इवैल्यूएट परफॉर्मेंस। वही बात है, कंट्रोल मटेरियल्स आप फिर एसिड वाले कंट्रोल मटेरियल्स यूज करो जिससे आपकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट हो सके। ठीक है। सो व्हाट वी हैव लर्न्ड,
how to go about getting your lab tested for external proficiency, and how to analyze your results and how to correct your results if there are any problems. Okay. Okay. So this is the end of my lecture. किसी को कोई question है? Please आप raise hand करें. QC टारगेट वैल्यूज जो है वो आपकी मीन पे होता है कि अगर आपका मीन जो है वो हर वक्त आप अपने देखोगे QC के अंदर आपका मीन जो है वो ऑलमोस्ट हर महीने का आप मीन निकालोगे कि आपके वैल्यूज का क्या मीन आ रहा है. और अगर आपका एवरी टाइम मीन चेंज आ रहा है, जैसे थ्री मंथ्स में आपने देखा कि मीन आपका चेंज आ रहा है, तो फिर आप वो मीन को यूज करोगे एज योर टारगेट वैल्यू. तो फिर आप उसका फिर उस हिसाब से आप QC चेंज करोगे. यूजुअली तो जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि आपके अगर आप कंपनी के कंट्रोल्स यूज कर रहे हो तो वो उनके टारगेट वैल्यूज मैच करने चाहिए. लेकिन बार बार ये होता है कि उनके टारगेट वैल्यूज आपके उससे मैच नहीं करते, तो फिर आप अपना मीन निकालते हो 3 महीने का परसिस्टेंटली और फिर आप वो मीन को यूज करते हो एज द मीन इन योर QC. ठीक है. ये एक ही चीज है. मीन कंपैरिजन एंड मीन फॉर कंपैरिजन सेम और डिफरेंट, दे आर बोथ द सेम. मीन फॉर कंपैरिजन इज कि आपका पीयर ग्रुप है उसका क्या मीन आया, वो मीन फॉर कंपैरिजन हम कह रहे हैं. एक ही चीज है दोनों. ठीक है. पीयर ग्रुप मीन इसको कहते हैं हम. कैप रिजल्ट्स ऑफ अनसैटिस्फैक्टरी व्हाट स्टेप्स, वही वाली बात है कि अगर आपका कैप रिजल्ट्स अनसैटिस्फैक्टरी है तो आप देखोगे कि क्या है, रैंडमली किसी चीज में आ रहा है या सिस्टमैटिक एरर है, तो फिर आप अपनी मशीन के उस पैरामीटर को आप चेक करोगे कि उसके रिएजेंट सही है, आपकी मशीन के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. सिस्टमैटिक है तो आपकी मशीन कोई भी हो सकता है, मशीन का प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई ऐसी चीज आपके अपनी इंटरनल QC को आप सारा देखोगे कि उसमें तो कोई मसला नहीं, जैसे हमने कहा कि स्ट्रेंड्स होना शुरू हो गए, तो इस तरह की चीज आप चेक करोगे, उसको सही करोगे. एनी क्वेश्चन? May I speak? जी सर. Excellent talk, Dr. Hora. Very, very good. Really, very impressive. And now you have learned how to go to the student level and explain the basic things. That is a sign of a very good teacher. Really, you have to Thank put yourself in the shoes of the students. I'm very happy that you are using this strategy. The topic is very, very important, as we discussed earlier also. This is I think the most important prerequisite for laboratory accreditation. You cannot get laboratory accreditation if you are not participating in a PT program, in a well recognized PT program. And by the way, just another piece of information: the when you are you have to select a PT program, you have to see that that PT program itself is accredited or not. The PT programs, they have to get themselves accredited also. There is a different standard for that, and it is not 15189. There is a different standard by which the PT program has to be accredited. Alhamdulillah, at AFIP, the NICAP, which Dr. Hora mentioned, the national program, it is accredited now by the PNAC. Dr. Saab, you have explained everything very well, and just 2-3 comments I want to say. One is that mainly this PT or external quality assurance is again a measure of if I want to explain, I usually ask my students, just explain PT program in 2 words. So what are 2 words most suitable for an external quality assurance program?
which can describe it. Just two words. It is inter-laboratory comparison. It is nothing else but inter-laboratory comparison. So, strictly speaking, it is not a measure of accuracy, because all, there is theoretical possibility that all the laboratories have done wrong testing, and your mean has come far away from the actual mean. It is theoretically possible, though it doesn't happen like this, but it is theoretically possible. So it is mainly your comparison with the other labs. Uh, but secondly, it also give you your precision. Dr. Hora showed a very nice slide. If Dr. Sab, can you share that slide again, the Randolph slide with the graphs? The full one. Yes, Randolph slides in which there were some graphs also. This Previous. one. This one. No, previous. Yes, this one. Now, this is very interesting slide, and so there are very important information which Rendox and Biorad also, Rendex and Biorad both uh, give these sort of statistics. It gives your internal LJ chart also. So it is a precision chart, LJ chart. I can't read it very clearly, but probably this is the LJ chart. What were your The result first in? one is the chart. Ye wala. Yes, First one is the the LG chart. top. Ji, I think the top one. ji. Your result on the first sample, second sample. So how you are comparing around the mean, around first one SD, two SD. So you can apply the Westcard rules on your own results too. At the end of the cycle, maybe after 15 samples or 12 samples, you can have your full-fledged LJ chart. This is most wonderful thing in these programs. Secondly, you can compare in probably in this chart. This is also very important. This is sort of bland outment plot, because it gives you your performance according to the concentration. This chart is according to the concentration. Here probably concentration is written. Dr. Hora, is it concentration? The last one. This is the percent Yes, yes. deviation by So concentration. This one. it gives you your performance according to the concentration of controls, because the material which they send, they vary a lot in concentration. Sometimes, for example, if we talk of protein, it will be very low. Sometimes it will be nearly normal. Sometimes high. Sometimes very high. So in this chart, it is not according to the sample number, it is according to the sample concentrations. So how is, and this is mean, and this is plus 1 SD, this is minus SD. So how is your performance according to the concentration? By inspecting this very graph, you can know that how is your performance when the sample concentration is low, when the sample concentration near normal, or sample concentration is high. So you can very critically analyze your own results according to the concentration of the sample, in this particular case, the proteins. So they are very costly programs. I tell you, you have to spend 200,000 or 1,500 per program on these when you participate in it. So I think we should take full advantage of their reports. This is my most important message for today's talk. That just what is happening in our institutes is that results come and they go in the wastage. They go into the waste paper basket. There are no meetings. Ideally, there should be QC meetings every month, and all the lab staff, senior technologists, lab managers, pathologists, they all should attend that meeting. And thorough discussion should be carried out on the results. Only then we can take advantage of these programs. And then we should dissect these graphs and these statistics. So I'm very thankful to Dr. Rishi and Dr. Hora that they have arranged this lecture. This is a very important step towards starting awareness or understanding of these
CAS program. I have got some training from United Kingdom also, and it was a weekly meeting. I tell you, the QC meeting was a weekly event, and they would discuss the PT program results very thoroughly. Sometimes there were hot discussions. Sometimes the purpose is not to blame anybody. Purpose is just to improvement. So we should develop this culture of discussing, dissecting, and these results, and then taking appropriate measures, as Dr. Hara has already elaborated, what measures should be taken when, according to the type of errors. Thank you very much. Thank you so much, Dr. Hora, for excellently elaborated this topic for international external quality assurance schemes or programs and basic terminology used. And I'm really very thankful and very happy. मैं समझती हूँ कि डॉक्टर होरा ने मेरी दिल की आवाज़ सुन ली कि जो है लोगों को बिल्कुल ग्रास रूट पर आके बिल्कुल उनकी बेस लाइन्स पर आके अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम में वैसे तमाम स्पीकर्स बहुत एक्सीलेंटली जो है ट्राई कर रहे हैं कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज और बिल्कुल बेसिक ग्राउंड्स पे आके और जो है उनको इस तरह से उसको जो है अकोमोडेट करें कि उनको समझ भी आए और वो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स प्रैक्टिस में भी हैं लेकिन बहुत सारे जो अभी इस वक्त प्रैक्टिस में नहीं है या इन गोइंग टू बी इन प्रैक्टिस इन प्रोसेस ऑफ एक्रेडिटेशन तो जो है बहुत ही एक्सीलेंटली जो है ना टॉक और ये बड़ा अच्छा यानी कि सकील टॉपिक था इंटरनेशनल एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम जिसको बहुत आसान करके और बहुत ही इलेबरेट करके जो है डॉक्टर होरा ने सबसे डिस्कस किया और थैंक यू सो मच जो है जिसे कहते हैं आई हैव नो वर्ड्स फॉर प्रोफेसर आमिर एजाज के जो अपना इतना वैल्यूएबल टाइम निकालते हैं और एक एक चीज़ हमारे प्रोग्राम मॉनिटर करते हैं और सिखाने की कोशिश करते हैं कमेंट और फिर फर्दर अच्छा दूसरा जो है एक सवाल कि जो यूके निकाब है जैसे आज इंटरनेशनल एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस है तो हमारे प्रोग्राम में नेशनल एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम भी है जो कि डॉक्टर प्रोफेसर आमिर एजाज उसको लीड करेंगे और इसके अलावा जो सबसे अच्छा टेक होम मैसेज है कि ज़्यादातर अक्सर जो है बस स्टार्ट होती है एक्रेडिटेशन और लोग ये समझते हैं कि शायद कैप और जो है रिकास इज ओनली सोल्यूशन फॉर क्योंकि जो है कुछ छोटी लैब्स भी हैं कुछ ऐसे जो है लैब्स भी हैं जो अनअफोर्डेबल हैं कि जो है इनिशियल स्टेप पे कि जो है निकाब इज वेरी चीप जो है उसको अप्रोच करें और दिस इज अ मच बेटर सोल्यूशन फॉर ऑन नेशनल लेवल इफ वी हैव सो वी शुड अवेल दीज टाइप ऑफ फैसिलिटीज के कैप और रिकास उन बड़े लैब्स में या जो अफोर्डेबल हों वो उसको अगर उनके पास वो रिसोर्सेज नहीं है तो एक और चॉइस हमारे पास कि हम व्हाई नॉट वी शुड अवेल आवर नेशनल सर्विसेज नेशनल एक्सटर्नल क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम so I'm really very happy to give this message through this lecture and again thank you so much for all my valuable speakers participants who are enthusiastically taking part in this sessions thank you डॉक्टर सॉरी एक जरा बात बतानी थी आई थिंक द talk on niqab should be from AFIP. I'm not no more in AFIP. I have retired, so I will try to get some speaker from AFIP who are running it. My namesake Brigadier Amir is now head of department of chemical pathology. I'll request from your side that you should spare some time to, or somebody else, maybe Kanan Zujaja or some other. But I think they are very busy until 5th and 6th of March. For all of you who are participating in this course, there is going to be a wonderful conference on pathology, ChemCon 21. It will be online, and I'll share the link with you. I'll send the link to Dr. Archie, and then she can share all of you. And the registration is absolutely free, and you can attend those talks online. And the topic is role of pathology laboratories in COVID-19, but it is mainly chemical pathology conference. There will be speakers on clinical subjects also. So I think they will be available after 5th or 6th March.
and they can, some of one from A5P will give a very nice talk of on niqab. And all of you are invited. And please don't keep any lectures of this course on 5th or 6th March. If possible, you can please postpone it. Thank you very much. Thank you so much, sir. Guys, today the lecture is ended. So thank you.